Good morning, friend. We are discussing about the Vision Eyes 5 question. Let's discuss the first question. First question is related to the geography section. They're asking about the jet stream basically. Let's see the question. The westerly jet stream is responsible for the rainfall in the northwestern region of India during the winter season. So the question is asking like that: the westerly jet stream that is responsible for the rainfall in the northwestern region and Tamil Nadu part get the maximum rainfall from this type of winter rainfall. Second statement is that like that the easterly jet stream is responsible for the rainfall at the Coromandel coast during the winter. For example, Coromandel coast is like that, and you have to tell the easterly jet stream is responsible for this, and you have to choose the correct option from the given option, and option are these. You have to choose the correct one from them. First, second, both first and second, neither one, neither two. I again repeat the question but in Hindi. Just a minute. आपको बताना है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मानसून आता है, इसको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल काल बैसाखी, सीखी और मैंगो शोवर और एप्पल शोवर इस लाइक दैट. ओके. सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है रिस्पॉन्सिबल हमारा रेनफॉल जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट पे होता है. फॉर एग्जांपल डेट इज़ द नॉर्दर्न, यहाँ पे कोंकण होती है, यहाँ पे मालाबार है, यहाँ पे आपका ये कोरोमंडल हो ही गया है, तो यहाँ पे नॉर्थ किरकार है, एंड एक उत्कल जो उड़ीसा वाला कोस्ट है उसको हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं. तो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, consider the following statement. That question is related to the art and culture. Let's see the question again. Consider the following statement regarding the Kodiyattam theatre from Kerala. See, first statement itself says quite good information that Kodiyattam is related to which of the following state. So Kerala is related to it, right? Let's see the first statement regarding it. It is based on the Sanskrit theatre tradition. Second, it includes the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of the humanity, and you have to choose the correct option from the given option, and option are these. First, second, both first and second, neither one, neither two. Again repeat the question. बात की जा रही है कोदियत्तम थिएटर की जो केरला से बिलोंग करता है, और ये बेस्ड है कि पूछा जा रहा है बेसिकली ये क्या बेस्ड है संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन से. सेकेंड, ये क्या जो यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ द ह्यूमनिटी में इंक्लूड किया गया है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आप हिस्ट्री से कह सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिगार्डिंग personality, and you have to choose which of the following were associated with the Madras Mahajan Sabha. Madras Mahajan, you know very well about the area of the Madras, and one information about the Madras Mahajan Sabha is that 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इन्होंने इसका विरोध किया था. 1857 का जो विरोध हुआ था, जो इंडिपेंडेंस हुआ था, उन्होंने जो मद्रास महाजन सभा थी उन्होंने इस एक्ट का या फिर इस वॉर का जो है विरोध किया गया था. और ऐसा कोई भी जो इंटेलेक्चुअल पार्ट नहीं था जिन्होंने विरोध वगैरह किया, विरोध नहीं किया था, तो इवन उन्होंने उनका साथ भी नहीं दिया था, बट इन्होंने डायरेक्टली खुद वोकल वे में विरोध किया था. एनीवे, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मद्रास महाजन सभा. तो पर्सनैलिटी आर फॉलोइंग: एम वीर रंगराजाचार्य, सेकेंड जी सुब्रमण्यम अय्यर, थर्ड आनंदू चार्लो, एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. आई अगैन रिपीट द क्वेश्चन. आपको कुछ पर्सनैलिटी के नाम दे रखे. फॉर एग्जांपल एम वीर राघवाचार्य, सेकेंड जी सुब्रमण्यम अय्यर, नंबर थर्ड आनंदा चार्लो, एंड आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा महाजन सभा के साथ एसोसिएटेड है. योर ऑप्शन आर दीज. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स सेक्शन इन विच दे आर आस्किंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस. सी, आपको ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन सी पोस्ट के लिए इलेक्शन कराता है बेसिकली. तो ऑप्शन आर म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन, सेकंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर थर्ड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. फर्स्ट नन, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड. स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 54 में दे रखा है. प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए आई थिंक 67 के लिए में दे रखा है. 67 भी में इनका इम्पीचमेंट है, और पोजीशन जो है वाइस प्रेसिडेंट की 60 से रिलेटेड ही है. स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में दे रखा है 81 आर्टिकल के अंदर, 80 में दे रखा राज्यसभा के अंदर, 79 में दे रखा पार्लियामेंट के अंदर. तो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन 243 ओ के बाद ओ ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है, पी से स्टार्ट होता है, पी से आगे जेड तक. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रिलीज द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ऑफ 2020. तो आपको ये बताना है कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है. तो UNEP, IUCN, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड वाइड फंड. आई कैन रिपीट द क्वेश्चन. एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री या फिर किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज की गई है. तो ऑप्शन है आपका UNEP, सेकेंड IUCN, नंबर थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड देन वर्ल्ड वाइड. लेट्स सी द आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपको ये बताना था कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल रेनफॉल इन द नदर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द विंटर. तो ये बिल्कुल सही है. जो हमारे मेडिटेरियन से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे यहाँ पे सर्दियों में एक रेनफॉल का पैटर्न दिखाई देता है जो
वेरी यूज़फुल है हमारी रबी क्रॉप्स के लिए। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप होती है जो सर्दियों में उगाई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। बेसिकली जो हमारा स्प्रिंग आने से पहले उनको काट दिया जाता है हार्वेस्टिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपका मस्टर्ड एग्जांपल है, लिनसीड एग्जांपल है, जो भी आप दाल उगाते हो ये भी आपकी सर्दियों में ही उगाई जाती है। मस्टर्ड ये मैं बता ही चुकी हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बार्ले एंड वीट, तो ये सर्दियों में ही उगाई जाती है। बात की जा रही है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, नहीं, कोरोमंडल कोस्ट पे जो भी बारिश होती है ये आपको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से जो आपकी सदर्न या फिर मॉनसून सिंपल ओरोग्राफिक मॉनसून जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से ही होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम टेम्पररी जेट स्ट्रीम मानी जाती है जो डेवलप होती है समर के अंदर। रिवर्सल इन ऑल अपर एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस इन समर, तो जो रिवर्सल होता है जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एट रीजनल लेवल, रिवर्स इन अपर एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन समर ड्यू टू द अपेरेंट शिफ्ट ऑफ द सन्स वर्टिकल रेज, जो ITCZ शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से जो सर्कुलेशन के पैटर्न में चेंज होता रहता है, तो जिसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री मानसून आता है। जो सिंपल मानसून होता है, जो आई थिंक 3/4 ऑफ द 75% जो मानसून या 80% जो मानसून आता है वो इसी जेट स्ट्रीम की वजह से आता है। द जेट स्ट्रीम स्टीयर्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशन स्ट्रीम इन इंडिया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच दिस डिप्रेशन विजिट इंडिया, द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी गो अ लॉन्ग वे इन डिटरमाइन द रेनफॉल पैटर्न ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। का मतलब ये है कि साउथ है और वेस्ट में इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून। It also helped in sudden onset of the southwest monsoon also, and the easterly jet stream does not play in bringing rainfall at the Coromandel coast during the winter. So first is not correct। और ये आती ही समर में है तो विंटर का तो कोई नाम बनता ही नहीं। फर्स्ट की बात करें तो जो सही है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड ड्यूरिंग द विंटर ओवर द सब ट्रॉपिकल जोन। दिस जेट स्ट्रीम बाइफरकेटेड, फॉर एग्जाम्पल हिमालय रिजीज पे आते ही बाइफरकेट होने के बाद द नदर्न ब्रांच ऑफ दिस जेट स्ट्रीम ब्लो अलोंग द नदर्न एज ऑफ द हिमालय। द सदर्न ब्रांच जो है आपके हिमालय के सदर्न में ही जाती है। द सदर्न ब्रांच एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द विंटर वेदर, जो हमारी कंट्री में होता है, तो उसकी वजह से ये हमारी कंट्री में रेनफॉल कर पाती है। दी जेट स्ट्रीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज नेम दैट आर गिव अपराउटेड फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बेसिकली वो जो है जो वेस्टर्लीज होती है मेडिटेरियन रीजन से मॉइस्चर लेकर आती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में रेनफॉल हो पाती है। अगर वो वहाँ से मॉइस्चर लेकर नहीं आई तो उसमें इतनी ड्राई हो जाती है जब तक वो आती हुई कि उसमें कोई मॉइस्चर ही नहीं बचेगा और यहाँ पे बारिश नहीं कर पाएगी। द जेट स्ट्रीम ब्रिंग रेनफॉल टू द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन एंड स्नो इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड द कोडियतम थिएटर, आई थिंक दोनों ही यहाँ पे सही है, ये दोनों सही है। ये जो संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन है वो हमारा, और कोडियतम जो है एक मार्शल डांस फॉर्म है जो संस्कृत में किया जाता है और इसको थिएटर में ऐड कर दिया गया है विद टाइम। एंड ये जो है ओरिजिनेटेड है केरला में और ये जो यूनेस्को रिप्रेजेंटेड लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड किया गया है। अभी जो है कुंभ का मेला चला होता है, कुंभ का मेला भी जो है इसी लिस्ट में ऐड किया जा चुका है, और जो कलबेलिया डांस है राजस्थान का वो भी इस लिस्ट में शामिल है। कोडियटम द संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ केरला डिक्लेयर किया गया है मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय द यूनेस्को। तो दीज कैरेक्टर ऑफ दिस थिएटर फॉर्म आर, तो चहकर और एक्टर हुआ करते हैं। नंबियार द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नामयार दोज टेकिंग ऑन वीमेंस रोल, जो भी पर्सन है मतलब मेल मेंबर है जो वीमेंस का रोल लेते हैं तो वो भी इस पूरे डांस फॉर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूत्रधार और नरेटर, जो सूत्रधार होते हैं जो नरेट करते हैं स्टोरी को, एंड विदूषक और द जेस्चर आर द प्रोटैगनिस्ट। इट इज़ द विदूषक अलोन हु डिलीवर द डायलॉग। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक दे रखिए, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा से कौन कौन रिलेटेड? तो मद्रास ये रहा आपका। 1953 में मद्रास को ही बाइफरकेट करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था। आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज तेलुगु है एंड जो अदर पार्ट था उसकी जो लैंग्वेज थी वो तमिल बच गई थी। तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो वीर राघवाचार्य थे, SG सुब्रमण्यम अय्यर थे, आनंदाचार्य थे। तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन दैट गिवन बाय द विजन इटसेल्फ। मद्रास महाजन सभा वाज फाउंडेड बाय द M वीर राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंदाचार्य कब 1884 में, मतलब कि INC से पहले, टू प्रमोट द राइट ऑफ द इंडियंस। इट वाज द अर्लियर नोन एज द मद्रास नेटिव एसोसिएशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द, तो ये फाउंड किसके द्वारा की गई थी? गुजलू लक्ष्मणिरु चत्ती इन 1849। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है कि आपको कौन कौन सी इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। बात करें इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 में दे रखा है। पार्ट की बात करें तो पार्ट आता है आपके पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 326 से बताता है कि आपके पास एडल्ट सफरेज है, मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की कंसेप्ट के बारे में बताता है। तो म्यूनसिपलिटी इलेक्शन जो कराता है स्टेट के इलेक्शन कमीशन कराता है, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए कोई अलग से जो है वो नहीं होता है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जो डायरेक्टली लोकसभा की इलेक्शन कराता है, लेकिन लोक स्पीकर का कोई इलेक्शन नहीं होता है।
ठीक है, तो फोर्थ गलत हो जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मतलब खुद से ही चूज़ कर लिए जाते हैं। एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन कराते हैं, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। और किस किस के कराता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के कराता है, पार्लियामेंट के कराता है। जो आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, स्टेट लेजिस्लेचर आपको बताना कौन सा आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 में दे रखा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। और प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात करें 53 में, 52 में दे रखी है प्रेसिडेंट की पोस्ट, 53 में दे रखा है एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कराता है। 4 ऐसे ऑफिस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कराता है। 1989 के बाद ये 3 मेंबर बॉडी हो चुकी थी और जो पहले हमारे इलेक्शन कमीशन थे वो सुकुमार सेन रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर के में से भी इलेक्ट किया जाता है, तो ये याद रखना। विच आर द फॉलोइंग बॉडीज रिलीज एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, तो UNEP 2020 की जो रिपोर्ट यही पब्लिश की है इन्होंने ही। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज के 5th एडिशन ऑफ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ऑफ 2020 की हाईलाइट किया था। इसमें 72% ऑफ कंट्री जो है एटलीस्ट वन नेशनल लेवल एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट जो है नहीं कर पाई, मतलब कंप्लीट। एनुअल कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन कितना आ रहा है जो कंट्री फेस कर रही है 2050 तक, ये जो अभी आ रहा है उससे 4 गुना हो जाएगा। एवरेज इंक्रीज इन एडेप्टेशन को जो है आउटपेज द ग्रोथ है, तो जो भी हमारी जिस तरीके से एडेप्टेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है तो उस हिसाब से जो ग्रोथ में एडेप्टेशन आउटपेज कर दिया जा चुका है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमारा जो ये पूरे जो टारगेट थे वो इनवर्सली अफेक्टेड हुए। लेट्स सी अबाउट द जल जीवन मिशन फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन एवरी रूरल होम। Let's see about the why is the news. The Ministry of Jal Shakti is preparing for the 3rd year of the implementation of Jal Jeevan Mission in a partnership with the state or the union territory. What is the objective? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरीके से सेफ एंड एडुकेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सकता है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के साथ 2024 तक एवरी रूरल हाउस होल्ड। इवन जो गोवा ने टारगेट रखा है वो शायद वो कंप्लीट किया जा चुका है, गोवा ने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो ये पहली स्टेट बनी है हमारे कंट्री की। ईच हाउस होल्ड विल हैव बी द मतलब हमारे यहाँ पे एम क्या है कि पोर्टेबल वाटर सप्लाई हर एक घर में होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड ये है कि अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2019 में कि हम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन या रिस्ट्रक्चर करेंगे। एंड इसमें मेन एम ये रखा गया 2024 तक हम सभी पर्सन को जल जीवन मिशन के तहत पानी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से लेवल पे या फिर कौन कौन से एरिया स्पेयर स्लॉट में ये काम करेगा। पहला जो एरिया है, पहला जो स्पेयर है नेशनल जल जीवन मिशन, सेकंड है स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, नंबर 3 है डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सैनिटेशन मिशन, एंड लास्ट में है ग्राम पंचायत सब काउंटी। ये तो हमारे जिस तरीके से स्टेट डिवाइडेड है पावर ऑफ डिवीजन डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बेसिस पे, उसी तरीके से यहाँ पे पावर को डिवाइड किया। नेशनल लेवल पे जल जीवन मिशन है। बात करते हैं स्टेट लेवल, तो वाटर एंड सैनिटेशन मिशन है। इवन ये वाटर सब्जेक्ट भी स्टेट लेवल की लिस्ट का ही है। डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ग्राम पंचायत सब कमेटी ऑफ द GP विलेज वाटर एंड सैनिटेशन जो है आपका लास्ट लेवल या फिर ग्राम लेवल पे दिया हुआ है। ठीक है, फूड फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड, किस तरीके से सेंटर एंड स्टेट जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं और किस तरीके से ये अपने जो भी खर्चा है वो शेयर किया जाएगा। हिमालयन स्टेट की बात करें तो एज यूजुअल 19-10 है। यूनियन टेरेटरी 100 जो है यूनियन टेरेटरी में जो है शेयर का जो प्रोपोर्शन है वो 100% सेंटर ही देगा क्योंकि ये सेंटर के अंडर ही आती है। 50-50 फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट। तो जो सिंपल स्टेट है जिनके पास रिसोर्सेज तो वो 50-50 डिवाइड किए जाएंगे। 8 कंपोनेंट है जल जीवन मिशन के अंदर। नंबर फर्स्ट कंपोनेंट ये दे रखा है कि हम डेवलपमेंट करेंगे इन विलेज पाइप वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा, सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, ताकि सभी पर्सन को जो है पानी मिला जा सके। बल्क वाटर ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि पानी को पहुँचाया जा सके। टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन की जाएगी ताकि हम जितने भी कंटामिनेंट्स है, जितना भी वाटर को साफ़ किया जा सकता है तो उसको करने की कोशिश की जाएगी। रीफ्लोटिंग टेक्निक का यूज़ किया जाएगा और जितने भी ऑनगोइंग स्कीम है उसमें ये लेकर आया जाएगा ताकि हम पानी पहुंचाया जा सके। और मिनिमम सर्विस लेवल जो है 55 LPCD रखी जाएगी। ग्रे वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा, जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको रीयूज़ किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, इसके लिए एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया, रेन वाटर लेट द कॉक्ट द रेन, कुछ ऐसे ही करके हैं। स्पोर्ट एक्टिविटीज़, इलेक्शन, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा डेवलपमेंट करने के लिए। यूटिलिटीज़ को, वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज़ को, मतलब इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा। अनफॉर्चुनेट चैलेंज अगर हमारे सामने आते हैं ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर कैलामिटीज एंड बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाएगा कि वो कंप्लीट कर पाएँ। बात कर ले रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 100% जो है हर घर जल गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड ने कंप्लीट कर लिया। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अराउंड 7.24 करोड़, मोर देन 1/3 ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव पाइप्ड वाटर कनेक्शन एज पर द न्यू लेटेस्ट डाटा। तो 1/3 का मतलब ये है 33% हैज़ द पाइप्ड information पाइप्ड वाटर। 7 स्टेट फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश रिसीव परफॉर्मेंस इंसेंटिवाइज इन 2021 क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया था, इस वजह से इनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि अच्छे से अपने स्टेट में वाटर की अवेलेबिलिटी को इन रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराया जाए।
फोकस शिफ्ट किया जा रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जरूर हो, सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी तरीके से, गवर्नेंस सिस्टम अच्छी तरीके से काम करेगी, अगर कोई भी ग्रीवांसेस आता है तो पीपल का समझा या सुलाया जा सके। प्रायोरिटी दी जाएगी क्वालिफाइड अफेक्टेड एरियाज को, विलेज इन रोट एरिया, प्रोन एरिया, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। कम्युनिटी मैनेज इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कम्युनिटी यहाँ पे जो है ऑडिट कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन एंड अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, एंड सस्टेनेबली विद दिस एफर्ट सो दैट द, अगर ऐसा ना हो कि एक बार हमने पानी पहुँचा दिया और उसके बाद 2-3 साल में हमने तो चलता रहा और 2-3 साल बाद फिर वो सस्टेनेबिलिटी गायब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। फंक्शनल टैप कनेक्शन होना चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, ये ज़रूरी ही है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर एक्सेट्रा। जल जीवन मिशन जो है डैशबोर्ड बनाया जाएगा ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर सकेंगे, और डेली वाटर सप्लाई के बारे में हर पर्सन को इन्फॉर्मेशन होगी थ्रू इंटरनेट, और किसी के पास अगर वो कोई जानना भी चाहता है तो। जल शक्ति अभियान फॉर द वाटर कंजर्वेशन इन वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में अगेन ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर पाएंगे, जो ODF सस्टेनेबिलिटी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम उसको भी मेंटेन कर पाएंगे ताकि वो अपनी लैट्रिन वगैरह को मेंटेन कर पाएँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकॉनमी के लिए बूस्ट साबित हो सकते हैं, पार किया जाएगा स्टेट को कि वो अचीव करे अपने हर एक गोल को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दे रखा है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 6 इज एसोसिएटेड विद इट। लेट्स से अबाउट द इंपॉर्टेंट विटामिन दैट कैन बी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल विटामिन B1 थायमिन है, B2 राइबोफ्लेविन है, B3 नाइसिन, B5 पैंथेनोइक एसिड है, प्रोडक्शन B6 है, B7 बायोटीन है, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 कार्बोक्साइनोकार्बोलामिन है। और ये वाला जो पार्ट है जो B12 है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी इस पार्ट को बनाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाय दिस वी आर एंडिंग द सेशन।